Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. Her name is Dhruti, and she is a spiritual business advisor and वास्तु expert. इन्होंने अब तक हजारों लोगों की हेल्प की है इन लास्ट 14 ईयर्स। उनके बिजनेस को सिर्फ ना कि ग्रो करने में, इन्होंने बिजनेस को तो ग्रो कराए कराया है, साथ में उनकी एनर्जी, क्लैरिटी एंड इनर अलाइनमेंट को भी इम्प्रूव कराया है, जिसकी वजह से उनके उनके बिजनेस में, लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। सो धृति, वेलकम टू द शो एंड I'm super duper excited for this episode. I hope you're also excited to do the deep and detailed conversation about your expertise. So I'm super duper excited, looking forward. And how are you doing today? Hello, Namaste. Divine Rainbow blessings and gratitude to all viewers and to you, Mohit. मैं बहुत अच्छी हूँ. I am also super excited for this podcast. Okay, let me ask you very first question, Durti. सबसे पहले मुझे यही जानना है, जैसे कि आप एक स्पिरिचुअल बिजनेस एडवाइजर हो, वास्तु एक्सपर्ट हो, तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? लाइक वाज देयर एनी टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया, ओके ओके, दिस इज व्हाट यू आर मेंट टू डू? मेरी spiritual journey, or you can say I started with learning with tarot cards around 15 years back. I started learning tarot cards. I learned basic and advanced, the Rider Waite cards. Then I went for numerology. Then I went for graphology. Then I went for angel card reading. Then I went for pendulum dowsing. धीरे धीरे करके मैंने ग्रो किया है. एंड दिस जो मेरा ये जर्नी है, व्हाट आई फील इज लाइक आई नीड टू हेल्प पीपल for growing their business or in the day to day life, because there is lot of mental stress everywhere in Yeah, every field basically. right. So that is how it is, and everyone is very intuitive. Basically every human being is very intuitive, but many people pay attention to it and many people don't pay attention to it. Very true, very And as true. a career wise, I wanted to start off my own something which is a freelancing type, as well as you are working also. So that Yeah, is how my journey started around 15 years back. ओके। तो जैसे अभी आपने बताया, आपने काफी सारे कोर्सेज किए हैं, एनएलपी किया है, टैरो कार्ड रीडिंग किया है, and और भी काफी सारे कोर्सेज किए हैं। तो इन सब कोर्सेज को करने के बाद आपकी खुद की लाइफ में, लाइक प्रोफेशनली एंड पर्सनली, क्या इम्पैक्ट आया? क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आपको खुद की लाइफ में देखने को मिले? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल करेक्ट यू. मैं वास्तु एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई एम अ ओके स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल एंड बिजनेस एडवाइजर, विच ओके हेल्प्स यू टू गाइड यू इन योर पर्सनल एज वेल एज business thing also. Okay. And secondly, I'm not an NLP trainer. I am and this only tarot card reading, numerology and all that, and other modalities. और उसमें भी मैंने फिर अभी healing I have learned, like Reiki I have learned, other quantum Reikis and all that I have learned for myself. तो मेरे उसमें जो change है फॉर मी, सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर ही न्यूमरोलॉजी का टेस्ट किया, by adding one I in my own name. इट्स आई स्पेल इट DHRUT II, जबकि ध्रुति रहता है DHRUTI. या ओके, तो वो सबसे बड़ा एक चेंज है मेरी लाइफ में, विच आई चेंज्ड माय एनर्जी फ्रॉम यू नो नंबर्स के ऊपर से, as according to my date of birth and all that, what numbers were missing, and accordingly I have placed my name. ओके। Okay, तो उससे so फिर क्या that is a चेंज big. आया? हाँ, जैसे कि मुझे बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन था, तो वो क्लैरिटी आने लगी. ओके फिर मैं सिग्नेचर जो करती थी उसके ऊपर से भी, हाउ व्हाट स्ट्रोक्स यू गिव, दैट मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन योर लाइफ. यू आर सपोज टू ऐड योर हस्बैंड्स और फादर्स नेम इन योर साइन, और यू आर नॉट सपोज टू ऐड. वो सारी चीजें भी मैटर करती है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. In numerology that matters a lot, in signature also, what kind of strokes you are giving. आप जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर्स करोगे उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड आपकी लाइफ रहेगी. जितनी सिंपल सिग्नेचर आप करते हो आपकी लाइफ उतनी ही सिंपल रहती है. ओके। अब जैसे आपकी लाइफ में चेंज ये देखने को मिलेगी, पहले क्लैरिटी नहीं रहती थी, अब बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है आपको, अपना मतलब नेम में सिर्फ यस. एक और एक्स्ट्रा टी लगाने से। एंड काफी सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, जो अपने नाम में स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट? यस. यस. तो मतलब इसके पीछे का वैसे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, लाइक? सी क्योंकि काफी साइंस सारे मैंने लोग जैसे. तो इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करते हैं। हाँ, दैट इज राइट. अगर मैं देखूं तो पिछले 500 सालों में आप बोल सकते हो सनातन धर्म को हमको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है.
राइट। क्योंकि पहले के टाइम पे संस्कृत में होते थे सारे अपने, जो है उससे पहले दूसरी कोई भाषा थी उसमें थे, उसको कन्वर्ट करके संस्कृत में लाए, अब जाके वो हिंदी एंड इंग्लिश या जो भी आपको लैंग्वेज में चाहिए उसमें मिल रही है। सो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने उसको ट्विस्ट एंड टर्न किया है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हमको अब जाके बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। इससे पहले हमारे पेरेंट्स के पास या उनके पेरेंट्स के पास भी उस चीज के कोई जवाब नहीं थे, बट देर इज अ प्योर प्योर साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम पे वो गिनती करते थे, जैसे कि अभी रावण, ठीक है, उसके बेटे के टाइम पे ही हैज अलाइंड ऑल दी प्लैनेट्स दैट वे एट द टाइम ऑफ हिज सन्स बर्थ। उसने वो सारे अलाइनमेंट किए थे स्टार्स के, भले वो जबरदस्ती किए थे उसने, बट वो किए थे उसने, एंड ही गॉट दैट प्रोग्रेस ऑल्सो इन हिज लाइफ। तो ऐसी सो कोई, इट डिपेंड्स अपॉन, अल्टीमेटली आपके जो कर्मा से उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट राइट। तो ऐसी कोई, जैसे आपने काफी सारे लोगों की हेल्प की है, काफी सारे लोगों को उनकी एनर्जी को अलाइन कराना, इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस, ये सारी चीजों में आपने उनकी हेल्प की है। एंड आप लोगों को भी, जो बिजनेस में लोग अपनी कंपनी का लोगो बनाते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस कराते हैं, जो अलाइन अलाइन हो रहे हैं, एनर्जी अलाइन हो रही है, सारी चीजें अलाइन हो रहे हैं। ठीक है। यस। तो ऐसी कोई केस स्टडी या फिर आपके क्लाइंट की कोई ऐसी स्टोरी जहां पर आपने लोगो में चेंज कराया या फिर उनके कंपनी के नेम में चेंज कराया, एंड फिर उस चेंज के बाद उन्होंने रैपिड ग्रोथ देखी हो या फिर स्लाइट ग्रोथ, या मतलब कोई ऐसी केस स्टडी आप अगर बताना चाहें तो। फिर देखिए मैं आपको समझाती हूँ, लोगो ऑल्सो इज अ सिंपल साइंस ओनली। आपका या प्लेसमेंट ऑफ द लोगो, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द लोगो, इट मैटर्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द ईयर्स एंड सारे कैलकुलेशंस के बाद, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट एंड एवरीथिंग। ओके, अभी मैं आपको एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, होंडा। ओके, होंडा कार्स जो है, इट इज अ वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया, या बट आउटसाइड इंडिया इट इज अ वेरी स्मॉल ब्रांड। इफ यू गो टू सी, उन्होंने क्या किया है, एच को उन्होंने वो स्क्वायर में डाल दिया है। ओके सो दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर बाउंड्रीज। ओके सो वो एक हो गया। इफ यू गो टू सी नाइक, इट गिव्स जस्ट अ सिग्नेचर एंड इट इज जस्ट रिटन बिलो द नेम। दैट ऑल्सो गिव्स द क्लैरिटी, वो उनको है, ठीक है। वेन एवर यू गिव द लोगो, इफ यू प्लेस अबाउट योर नेम और समथिंग, ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक ओवरहेड बर्डन लेते हो। एंड व्हाट कलर कॉम्बिनेशंस यू यूज, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। जैसे कि फायर एंड वाटर कलर आर नेवर कम टूगेदर। दिस इज द सिंपल थिंग, आज कोई भी है उसको भी पता है वास्तु में, मतलब फायर एंड वाटर, एनी विच वेज फायर एंड वाटर नेवर गेट अलोंग। इट इज अ सिंपल बेसिक साइंस which you and I have studied in our school days. So same way you cannot use the two colors together, it won't give you, you know, great things. So one of my client, she is into like marketing, digital marketing and all that, उन्होंने अपने नाम जो था उसको बॉक्स में डाल के रखा था। ओके। मैंने वो बॉक्स खाली हटवा दिया, तो उससे उनके ग्रोथ हो गए, शी स्टार्टेड ग्रोइंग। वेरी नाइस। क्यों, मतलब वो फायदा हुआ वो बाउंड्रीज हटाने से खाली, बिकॉज समवेयर यू ओपन योर बाउंड्रीज। सो एज अ बिजनेस, एज अ स्पिरिचुअल बिजनेस एडवाइजर, आप एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को अपनी एक्सपर्टीज से और कैसे हेल्प करते हो, लाइक उनकी सी क्या क्या देखिए, सबसे प्रॉब्लम्स को आप पहले तो, सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये रहता है कि आई वर्क अपॉन देयर मेंटल हेल्थ ओके। more than a physical health. Everybody pay attention to the physical health, but या nobody pays attention to the mental health basically. या राइट। Nowadays mental health is more important, because if you are mentally fit, then only you will take the right decisions, then only you will believe in your intuitions. यहाँ पे सेल्फ डाउट बहुत होता है लोगों को, looking at others and all that, but somewhere again you have to go with your gut feeling also. Why do we tell that मेरा gut feeling ये बोल रहा है? हम क्यों बोलते हैं ये चीज? बिकॉज वी हैव टू बिलीव इन आवर गट।
सो ये सारी चीजें आई वर्क अपॉन their मेंटल हेल्थ एज वेल एज आई डू सम मेडिटेशंस विद देम, आई डू देम। अगर उनके नाम में कुछ करेक्शंस करने हैं तो वो कर सकते हैं हम बिजनेस वाइज, लाइक यू नो। और कलर कॉम्बिनेशंस क्या यूज करते हैं, उनका विजिटिंग कार्ड जो रहता है उसमें आपका नाम कहाँ पे है, वे शुड बी योर लोगो प्लेस, वे शुड बी योर नेम, आपकी कंपनी का नाम कहाँ पे आना चाहिए, दैट ऑल थिंग्स ऑल्सो मैटर्स। ओके, गॉट इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, काफी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को लाइक सिर्फ मेडिटेशन या पूजा पाठ तक ही लिमिट करके रखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल रोल बिजनेस की सक्सेस में क्या हो सकता है या कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? क्योंकि अभी सी तक तो वो लोग सोच। स्पिरिचुअलिटी सी स्पिरिचुअलिटी सब जगह पे है। इफ यू गो टू सी गुड, मतलब अपने जो सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक यू नो एप्पल के ओनर, ही हैड कम टू इंडिया फॉर 3-4 मंथ्स और 6 मंथ्स, उन्होंने यहाँ पे आके साधनाएं की है, फिर जाके उनका वो बिजनेस ग्रो किया हुआ है। एंड बिजनेस वाइज इफ यू गो टू सी, यू हैव टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग, तभी तो आप मतलब ग्रो कर पाओगे। यू विल मेक द राइट डिसीजंस। इफ यू गो टू बिल्कुल। सी अंबानी, राइट, तो नीता अंबानी हर थोड़े दिन में इधर पूजा उधर पूजा वो सब करवाते रहती है, क्यों करवाते रहती है? स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। लोग मानते नहीं है, बट आई हैव सीन नाउ डाउन द लाइन 2 years के नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट। सी वास्तु इज अ वेरी ओल्ड थिंग, ओके। पहले लोग बोलते थे कि मतलब वास्तु के हिसाब से घर होते थे, महल, या पहले के अगर आप घर देखोगे या जो भी, लाइक यू नो, देवर इन प्रॉपर रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप। एंड वहां पे ब्रह्म स्थान, मतलब जो बीच का जो स्थान रहता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, दैट यूज टू बी ऑलवेज ओपन। बीच में लोग नहीं मानने लगे थे, बट नाउ डाउन द लाइन 5 years आई एम सीइंग वास्तु इज बीइंग कैचिंग अप वेरी मच। आप समझो एक बात को, एक कोई लैंड की एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, कोई लैंड की एनर्जी है, वो अगर आपके आप जैसे जैसे हाई जाओगे, देर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो टू कम, जो आपको पुल करेगा। या। सो नाउ डेज अभी हाई राइज बिल्डिंग हो रही है एवरीवेयर, या। छोटे घर तो रहे नहीं है। सो एज यू गो हाई, अगर कुछ एनर्जी पॉजिटिव है तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी देगी, बट कुछ नेगेटिव है तो वो आपकी पॉजिटिविटी पूरी खींचेगी आपको। बिल्कुल। सो नाउ डेज पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग, एंड इफ यू गो टू सी, धीरे धीरे करके अपने ओल्ड बिजनेस ट्रेंड्स भी वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। एंड अगर मतलब ये जो आपका एक टैगलाइन भी मैं पढ़ रहा था जहां पर आप बोलते हो योर थॉट शेप्स योर आइडेंटिटी, राइट? यस। एंड काफी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी गट फीलिंग को नहीं सुन पाते हैं, डिसीजन लेने में बहुत वीक होते हैं। उनको लाइक थॉट्स ऑफ फियर, डाउट, कंपैरिजन, ये बहुत बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस है, ग्रोथ है, वो इम्पेक्ट करता ही करता है। ठीक है। तो इन सब से फाइट करने का, डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करने का, एम्पावर करने का, फियर को कम करने का, कंपैरिजन को बिल्कुल ही दिमाग से निकालने का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल पाथ क्या हो सकता है? सी देखिए, मैंने जैसे बताया, सबसे पहले आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको बिलीफ होना चाहिए। ओके। इफ यू योर सेल्फ डोंट बिलीव, अगर ऐसे देखे तो भगवान तो कहीं पे भी बोलेंगे तो भगवान तो किसी किसी ने भी नहीं देखा है। या। हैज एवरीवन सीन प्रॉपर गॉड? हम मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन बट हमको पता है कि भगवान ऐसे ही दिखते हैं, बट वी हैव दैट बिलीव कि हाँ भाई भगवान है। सो सेम वे इट इज विथ यू ऑल्सो, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी, आपको आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपैरिजन, जरूरी नहीं है कि आप कंपैरिजन करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। सी समटाइम्स आई अग्री कि कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड, बट एवरी टाइम यू जस्ट कैनॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। यू डोंट नो वॉट, मतलब उनको आपको दिख रहा है कि वो बहुत पैसे वाला है, बट उनका क्या है उनके घर पे, या उनके मेंटल स्टेट क्या है, वी डोंट नो। सी आज सब लोग बोलते हैं कि अंबानी के जैसे पैसा कमाना है, दैट इज राइट, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट पार्ट, बट समवेयर यू हैव टू थिंक ऑल्सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एट देयर प्लेस ऑल्सो। धीरू भाई अंबानी मैंने भी जब इतना एम्पायर खड़ा किया, ही लिटरली डिवाइडेड टू थिंग्स इन द टू सन्स बेसिकली। और उनकी अपने को हाइट्स, मतलब व्हाट दे हैव ग्रोन, वी हैव ऑल सीन दैट। सी हर एक का टाइम फ्रेम रहता है ना, अगेन आई वुड से सब जो घूम फिर के है आपके कर्मास के ऊपर आता है। आपने जो पास्ट लाइफ में जो कर्मास किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग अच्छा बुरा सब आपको मिलेगा।
if today I am also doing a podcast with you, then it might be destined for me to do this thing, and you might be the एक माध्यम बोलते हैं उस, वो आप हो शायद से मेरी ग्रोथ के लिए। यू माइट बी आपका कुछ रह गया रहेगा मेरे को देना, उसके वजह से यू मतलब हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज कर्माज। और मैं ये नहीं बोलती हूँ, सी एवरीथिंग इज एनर्जी, और सब एनर्जी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वेदर इट इज वास्तु, वेदर इट इज न्यूमरोलॉजी, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, आप जो बोलो, अकल्ट साइंस पूरा का पूरा जो है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बट अल्टीमेटली आपके कर्मास आपके ऊपर काम करते हैं। उसके लिए देखो, सनातन धर्म में कोई भी क्या बोलेगा, तुम अपना धर्म कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर। आई बीइंग अ जैन, तो हमारे भी उसमें बोलते कि आप कर्म अच्छे करो, you don't hurt others by your words or by anything, by your actions. The ultimate goal is that for everyone. बिल्कुल। एंड स्पिरिचुअलिटी को ना कभी कभी काफी सारे लोग वैसे तो लाइटली लेते हैं, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इसको रिलीजियस एंगल भी देते हैं। जैसे आपने अभी नीता अंबानी का एग्जांपल दिया, वो पूजा पाठ करते हैं, तो वो हिंदू है, वो अपने हिंदी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। Yes. एंड ऐसी मतलब जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं सब सनातन धर्म सबसे ऊपर आता है। एंड जो और दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको लगता है कि ये एक रिलीजियस चीज है, व्हाई शुड वी परफॉर्म हाँ। इट। जैसे वेस्ट वेस्ट कंट्रीज है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर हिंदुइज्म इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी वहां पर भी है या फिर नहीं है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, यू कैन टेल इट मोर क्लियरली। तो See, स्पिरिचुअलिटी spirit. को रिलीजन वाइज कैसे मतलब, how exactly every religion should respect it, how you can convince them to start the spirituality journey, and अगर कोई दूसरे रिलीजन से भी है तो कैसे कर सकता है फिर इसको। See, every religion ultimately क्या बोलते हैं, you have to work, you have to do your karmas, and then in return you don't wait for the fruits to come back. मतलब हम यस। जो बोलते हैं ना कि हम जो जमीन में बोएंगे वही हमारे पास वापस आएगा, इन अ typical farmer thing. Okay, western countries also, they used to not believe, but over the time now they've also started believing in the spirituality, and spirituality is नॉट दैट कि आप मंत्र जाप करो या आप मंदिर रोज जाओ तो ही आप वो स्पिरिचुअल कहलाओगे, बट यू हैव टू बी जहां पे आपके दिमाग में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कुछ गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेन स्पिरिचुअलिटी। आप किसी को गलत वे से मिसगाइड नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटी इज बेसिकली व्हाट वी से, काइंडनेस, शो सम काइंडनेस टू योरसेल्फ एंड अदर्स आल्सो। राइट। एंड जैसे हम एनर्जी अलाइनमेंट की बात करते हैं, यस। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को या बिजनेस ओनर को कैसे पता चलेगा कि एनर्जी अलाइंड है या फिर नहीं है। सी कैसे पता चलेगा, जैसे कि अभी बैक टू बैक आपके साथ कुछ हादसे हो रहे हैं, आप कुछ ओके। एक्सीडेंट मीट कर रहे हो, या आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट आते आते अटक जा रहा है, या बातचीत हो रही है बट वो फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है, सो देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर एनर्जीज आर नॉट अलाइंड। ओके। एंड टू गेट इट अलाइंड, मैंने जैसे बताया, इट 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 इज नथिंग लाइक, बट योर मेन मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच पीपल डोंट पे अटेंशन टू द मेंटल हेल्थ। हम स्ट्रेस बोलते हैं, पहले के टाइम पे इंसान सुखी था, शांति से काम करता था, इतना डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे, they used to work like literally 6 to 8 hours, and they used to have a good amount of family time also. But in today's time we don't have that family time, or कुछ स्पेशल हम हमारे पार्टनर्स के साथ भी। nowadays what is the reason why the divorces are happening more and more, why the kids are don't want to get married, or they don't want to do the kids also? It is just a simple thing, they don't want to take the responsibilities and they don't have the patience. राइट। कोई भी चीज में पेशेंस लगता ही लगता है। आज अगर हम बोले, बच्चा भी जब छोटे से, हम भी आज छोटे से बड़े हुए, तो हम इंस्टेंटली तो कुछ सीख के नहीं आए थे, वी ऑल्सो लर्न ग्रेजुअली एज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द थिंग्स। पहले के टाइम बिल्कुल। पे मतलब बच्चा 3 3 महीने तक सोया रहता था, बट नाउ तो इट इज विद इन वीक्स टाइम और समथिंग,
पीपल आर लाइक बच्चे उठ के वो देखते हैं आजू बाजू, बिकॉज हमने वो देखा हुआ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो। इट इज सेड कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 80% ऑफ द ब्रेन इज डेवलप्ड ऑफ द बेबी। सो दैट इज द मैटर, व्हाट यू सी, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू फील, दैट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द बेबी। अगर हम क्लासिक एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो महाभारत में अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे, ठीक है, वो उनको चक्रव्यूह में घुसने को आता था, बट ही यूज्ड टू नेवर कम आउट ऑफ इट, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम सुभद्रा यूज्ड टू जस्ट गो ऑफ टू स्लीप। 9 months उसने सुना है चक्रव्यूह में जाते हुए, सो ही कुड गो वेरी इजीली। चक्रव्यूह इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वॉर टाइम के ऊपर, कि उसमें आप किसी को बुला लेते हो तो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ सर्कल थिंग एंड ऑल दैट। जैसे हम वो एक मेज आता है जो भूल भुलैया टाइप्स, तो ओके। अर्जुन को वो आता था अंदर, मतलब अर्जुन के बेटे को वो आता था, अर्जुन सुनाता था सुभद्रा को एवरी नाइट। बट वेन वो जब बाहर आने की बातें करता था तब सुभद्रा सो जाती थी, तो अभिमन्यु कुड नॉट हियर दैट। राइट। ओके। एंड जब भी हम एनर्जी अलाइनमेंट की बात करते हैं, लेट सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैं आपके पास आता हूँ एंड मैं आपको अपना लोगो दिखाता हूँ एंड अपना डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि धरती, मुझे क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे लेट सपोज बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो फिर इस सिचुएशन के बेसिस पर आप कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या फिर आपके क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप मुझे हेल्प करोगे, मतलब कितने स्टेप्स होंगे, कौन से स्टेप्स होंगे जो आप मुझे गाइड करोगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलोगे एंड मुझे सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। सी सिग्निफिकेंट चेंज मतलब कोई भी चीज को इफ यू गो टू सी इट टेक्स अराउंड 30 to 40 days चेंज ओके। होने के लिए। या अगर गुड। हम आज के टाइम पे भी देखें, कोई बिजनेस भी हम स्टार्ट करते हैं तो 100 days तो हमको देने पड़ते हैं बिजनेस को। सेम वे इट टेक्स 30 to 40 days। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आई विल सी कंपनी का नाम अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इट इज ऑन द राइट नंबर और नॉट। ओके। फिर आपका लोगो का मैं पोजीशन देखूंगी, फिर आप लोगो क्या दे रहे हो वो मैं देखूंगी, प्लस आप कलर कॉम्बिनेशंस क्या यूज कर रहे हो वो मैं देखूंगी। ओके। वो हिसाब से फिर होगा एंड यू कैन सी द चेंजेस विद इन 30 to 40 days। ऑलराइट, गॉट इट। ओके, ठीक है। एंड जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हो, राइट? हम्म, सो राइट। टैरो कार्ड रीडिंग है या फिर इंट्यूटिव इंट्यूटिव गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो काफी सारे लोग इसको सिर्फ एज अ सेल्फ बिलीफ देखते हैं, मतलब बिलीफ के रूप में देखते हैं, काफी सारे लोग इस पर डाउट भी करते हैं। ओके। राइट। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी हम इंस्टीट्यूशन बिजनेस डिसीजन, मतलब अपनी इंस्टीट्यूटिव इंट्यूटिव या फिर गट गट फीलिंग की बात करते हैं, डिसीजन लेने में कितना पावरफुल टूल हो सकता है? देखो, टैरो कार्ड्स जैसे मैंने बताया, टैरो कार्ड कैन टेल यू आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में। वन कार्ड हैज डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, उसमें इंट्यूटिव तो आपका लगता ही लगता है, प्लस आप कार्ड देख के आपको क्या दिखता है, सबसे पहले क्या कलर दिखता है वो हिसाब से आपका सारा होता है। उसमें नंबर्स भी रहते हैं। सी टैरो कार्ड राइडर वेट का जो क्लासिक है इट इज ऑफ 78 कार्ड्स। 22 आर मेजर एंड रेस्ट ऑफ आर माइनर कार्ड्स। सो माइनर कार्ड्स में भी अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, ये सारी चीजों को अलाइन करके वो कार्ड्स वैसे दिए हुए हैं। सो उसके साथ में हर एक कार्ड के भी लाइक इंडिया में व्हाट आई हैव लर्नड इज आई सी दी कार्ड अपराइट एज वेल एज द रिवर्स कार्ड ऑल्सो। अगर कोई चीज में कोई नेगेटिव कार्ड है उसको रिवर्स आता है तो अगेन इट कैन बी मोर नेगेटिव और इट कैन बी यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। ये चीजें हैं एंड लोग with tarot you can come to know, you will get the exact question answer to your problem। ओके, गॉट कितनी इट। बार उसको गाइडेंस के हिसाब से भी लोग लेते हैं, that I am stuck in a situation, what is the right guidance for me with these cards I can tell you, as well as I can tell you down the line for 3 months to 6 months also that what will be in your life coming. So in a way you will be able to be prepared mentally for it।
ओके। जैसे कि मैं टैरो सीख रही थी, तो उसमें आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल, लाइक व्हेन आई हैड लर्न टैरो, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड डन वन एक पूरे साल की रीडिंग फॉर माय हस्बैंड, विच आई हैड डन इन अराउंड अक्टूबर और समथिंग दैट वे। सो दैट टाइम मेरे को वो कार्ड्स में आया था कि जैन में उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे, फेब में उनको इमोशनली ही वुड बी ड्रेन्ड और समथिंग, इमोशनली ही वुड बी लो, दैट वे वो आए थे। सो आई टुक इट वेरी लाइटली, कि मतलब ठीक है, मतलब बीमार तो मेरे हस्बैंड वैसे होते नहीं है। दिस इज आई एम टेलिंग यू अराउंड 14 years बैक का बात। सो दैट टाइम माय हस्बैंड हैड मेट ऑन 10th of January, ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, which is again an health issues. या Had to go through a surgery and all that things. So that is again a health issues. Health issues does not mean कि आप बीमारी गिरोगे. It can be anything. So वो चीजें हैं. So ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आता है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है with गॉट the इट, tarot. गॉट इट, गॉट इट। एंड कौन सा ऐसा इनर वर्क है जो बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए, चाहे वो एडवांस लेवल पर है चाहे वो बिगनर्स हैं, और उनको करना ही करना चाहिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले या फिर इन बिटवीन ऑल्सो? So वो in between या कभी भी basically what is there, you have to give some me time to yourself, 10-15 minutes daily. You have to ओके। sit with yourself. You have to concentrate on your breathing. मेडिटेशन इज नॉट दैट कि आप घंटा भर बैठे रहो। मेडिटेशन इज समथिंग यू आर डूइंग दी वर्क विथ दी होल हार्टेड। आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करके, आपको उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। जैसे कि अर्जुन को वो तीर मारते समय खाली उसको वो मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, ही कुड नॉट सी एनीथिंग एल्स। सो राइट। दैट इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। यू हैव टू एनालाइज कि अच्छा आज दिन भर में मैंने क्या प्रोडक्टिव काम किया है, मैंने क्या किया है आज दिन भर में, या मैंने क्या एक अच्छा काम किया जिससे मेरे वजह से किसी के एक स्माइल आ गई। यू शुड बी फीलिंग वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल। ऑलराइट। एंड आपको क्या लगता है, लाइक दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इन फ्यूचर जो बिजनेसेस होने वाले हैं ज्यादा स्पिरिचुअलिटी अलाइंड होंगे या फिर मोर इट इज गोइंग टू बी लाइक लॉजिकली? See, both the things will be there. Again, I said there are people who will believe, there are people who won't believe also. ओके। दोनों तरीके के लोग रहेंगे। बट जो स्पिरिचुअलिटी देखेंगे, जो स्पिरिचुअलिटी वाले हैं, दे विल बी ग्रोइंग इन अ बेटर वे, आई वुड रादर से दैट वे। ऐसा नहीं है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास। आज बोलने के लिए कोई गलत काम कर रहा है वो, लेकिन लाखों रुपए कमा रहा है, अगेन इट इज समथिंग एनर्जी। मनी इज ऑल्सो एनर्जी। या ही इज बिलीविंग इन हिमसेल्फ एंड ही इज गेटिंग दैट एनर्जी। बिल्कुल। एंड दुनिया में कोई सही या गलत काम नहीं होता, उसके लिए वो एनर्जी मैटर करती है, उसको पैसा चाहिए। ही इज यूजिंग हिज ब्रेन अल्टीमेटली टू अर्न दैट मनी ऑल्सो। या राइट। एंड अगर कोई बिजनेस ओनर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, सुन रहा है एंड दे वांट टू कांटेक्ट यू, so can you share your contact detail to them, like your email address or your Instagram or LinkedIn account user ID Yeah, or something? yeah, if they people want to connect with me, then link अपना इंस्टाग्राम पे आई हैव डिवाइन वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी के नाम से मेरा इंस्टा पेज है। ओके। Okay, और ऑन फेसबुक ऑल्सो आई हैव विद द नेम ऑफ ध्रुति डेढ़िया। got it. So guys, if you're watching it till here, I will also put the link. मैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की। सो गाइज, इफ यू वांट कॉन्टैक्ट धुरती, do contact. She will tell you, like if you're struggling with slow growth, inconsistent leads, flow clients, and you're facing some challenges in your business or in your entrepreneurship journey or personal life also, you can contact her. She will definitely help you. So Dhurti, thank you so much for your time. You have shared a lot of insights here. Thank you so much. It was lovely Thank you talking to so you. much for inviting me on this podcast. And I feel I have given you a lot of insight what Yeah, exactly the spirituality is, what yeah, yeah. exactly is the, like, the tarot and everything. Absolutely, absolutely. People are going to get a lot of insights, knowledge, and absolutely, if they have watched it till here, they are going to get a lot of knowledge also. So thank you so much. मुझे भी काफी कुछ नई Thank, चीज जानने को मिली. Thank you so much. thank you. Thank you.